Hello kids, we are starting a new chapter today. This is chapter number 2, Numerals on Abacus from the book Maths 1. So we have given some learning objectives. At the end of this lesson, students will be able to know about the working on the abacus. So इस chapter के end होने पर जो students है वो पता लगा पाएंगे कि abacus पर हम कैसे work करते हैं, okay, उसको कैसे use करना है. Learn the place value ones, tens and hundreds with the help of abacus. Abacus की help से हम place value भी learn करेंगे. Ones, tens और 100 place को समझेंगे. Count, write numerals and number names according to the beads on abacus. and हम count कर पाएंगे numbers को write कर पाएंगे, number names को write कर पाएंगे with the help of abacus पर जो beads होती है उनकी help से. Okay kids? Then we have warm up. Look at the picture carefully and circle the group of 10. So pictures देखनी है and just group of 10 है उसको circle out करना है. Okay kids? So in the first picture you can see there are so many roses. So पहले count करते हैं and then जहाँ पर 10 आएगा उसको हम circle कर देंगे. Okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ तक 10 हो गए हैं. So circle कर देते. Okay, then here you can see there are so many butterflies. यहाँ पर भी count करते हैं and then जहाँ पर 10 आएगा उनको circle कर देंगे. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So 2 lines में हुआ. Okay. Then यहाँ पर birds हैं. यहाँ पर भी similar thing करनी है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ तक हो रहा है. ओके देन यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. यहाँ पर 2 ग्रुप्स बन रहे हैं तो एक और ग्रुप को सर्कल करेंगे. ओके यहाँ पर 2 ग्रुप्स थे. ओके देन यहाँ पर you have to count and then you have to circle the group of 10 cats. Okay kids? Now abacus. This is abacus. You can see. An abacus is a calculating machine used for counting numbers. जो abacus होती है ये calculating machine होती है जिसकी help से हम numbers को count करते हैं. Abacus consists of rods. Abacus के अंदर rods होती हैं. These are the rods. This blue one, this stick. Okay, these are the rods. Now each rod of abacus represents a place value. जो हर एक rod होती है वो एक place value को represent करती है. Like you can see, this is ones. This is tens and this is hundreds. Then there is thousands also. Okay, increase होती रहती है with one stick. जैसे जैसे sticks add होंगी उसके हिसाब से place value increase होगी. यहाँ पर सिर्फ 3 given है, that's why ones, tens, hundreds. Okay? The rod on the extreme right is ones rod. तो extreme right पर, this is the extreme right, यहाँ पर ones की rod होती है. Okay kids? The rod in the middle is tens rod. So ये जो middle में rod होती है, this is tens rod. Okay, सबसे पहले ones आती है. This one is ones, अभी मैंने बताई. Then जो middle में होती है, that is tens. The rod on the extreme left is hundreds rod. और जो extreme left पर, this one, this is hundreds rod. Okay, got the difference? Now rod consists of beads. Rod के अंदर क्या होती है? Beads. You can see यहाँ पर देखो magenta कलर की है, यहाँ green कलर की है, यहाँ purple कलर की है. These all are beads. Slide the beads in the rod to represent numbers. So ये जो beads होती है ये actual में numbers को represent करती है कि 100 place पर कौन सा number है, 10th place पर कौन सा number है, 1st place पर कौन सा number है, उसके according हमें final number पता चलता है. Okay? Now place value. तो यहाँ पर ये जो given है यहाँ पर 1 pair given है. Okay, so this is ones. Got it? Now यहाँ पर क्या given है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pairs given है. So यहाँ पर 10 ones. ये single था. अब ऐसे जब 10 हो जाते हैं तो उन्हें हम क्या consider करते हैं? 10 ones. Okay. And 10 ones से क्या बनता है? 1 tens. जैसे यहाँ पर ones के 1 ones हो गया. Okay. एंड ऐसे ही जब 10 ones मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? 1 tens. Okay kids?
Now next we have count and write. Count and write numeral and number name. Also draw the beads on the abacus. So हमें count करना है and write करना है number name और numeral and beads को भी draw करना है abacus पर. Okay, so यहाँ पर ये given है 100 beads. Okay, then ये जो given है group ये 10 beads का है, ये भी given है 10 beads का and ये जो given है ये 5 का है. Okay, so यहाँ पर हमारे को 2 times 10 दिया है, तो 10 plus 10 क्या हो जाता है 20. Okay, and 5 तो ones place पर रहेगा and 100 है, so numeral end में क्या आया 125. यहाँ पर ये tens वाले दोनों सेम थे तो सबसे पहले हम ऐड करते, तो 10 में 10 ऐड किया तो 20 तभी आया एंड नंबर नेम क्या आया 125. ओके, एंड यहाँ पर भी शो किया वंस टेंस 100, सो वंस पर 5 था, हमने देखा तो 5 लिखा. देन मिडिल वाले में दो चीजें थी, तो 10 plus 10 किया तो 20, 2 आ गया. ओके, एंड 100 में 1 था, सो 125. ओके, अब बैकिस पर भी शो किया है, वंस में यहाँ पर 5 भी ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5. ओके, एंड टेंस में यहाँ पर 1 2 थे टेंस, इसलिए यहाँ पर 2 बीट्स ड्रॉ की है एंड हंड्रेड्स में यहाँ पर 1 बीट ड्रॉ की है. दैट्स व्हाई द आंसर इज 125. ओके किड्स, नाउ टीचर्स नोट. Use physical objects to represent the numbers to help children visualize what they are doing on the abacus. For example, you can use 25 pebbles to represent the number 25. Once they understand how to count with physical objects, they will be able to transfer that knowledge on the abacus. So, हमें क्या करना है, physical objects का use करना है नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि चिल्ड्रन विजुअलाइज कर सके कॉन्सेप्ट को. जब वो समझ जाएंगे कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को कैसे काउंट करना है, तो वो जो ये वाली नॉलेज है वो अबैकस में यूज कर सकते हैं और नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके किड्स, देन नेक्स्ट दिस वन इज गिवन. सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पर 10 दिया है, दिस इज 10, अगेन 10 10 10 10 and 10. ओके किड्स, यहाँ पर सिर्फ 10 10 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर वंस में तो कुछ आएगा नहीं, टेंस जो है मिडिल वाली होती है. अब कितने टेंस हैं 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ पर सबसे पहले 6 बीड्स ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 5 6. ओके, अब हंड्रेड्स के लिए कुछ गिवन है, नथिंग इज गिवन. ओके, यहाँ पर भी राइट कर देते हैं. यहाँ पर क्या आ गया 6. ओके, यहाँ पर तो 6 आ गया. यहाँ पर कुछ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डायरेक्टली हम टेंस पर पहुंच जाए, तो यहाँ पर क्या आएगा 0, बिकॉज देयर इज नथिंग एंड हंड्रेड्स में भी 0 है, सो 0 पुट करेंगे. सो दिस नंबर इज 60. ओके, 60 60. जो 100 प्लेस पर 0 है उसको हमें राइट नहीं करना है. If you want to write, you can write, but the numeral is 60 and number name is 60. Got it kids? कैसे हमने किया ये क्वेश्चन? फर्दर एक और क्वेश्चन करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, यहाँ पर 100 बीड्स गिवन है. ओके, एंड ये जो गिवन है ये 8 बीड्स गिवन है. ओके किड्स, तो यहाँ पर हमें वंस गिवन है, सबसे पहले 8, दिस वन. अगर जब तक टेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो 10 का ग्रुप होना चाहिए, 10 वंस इक्वल्स टू 1 टेंस, तो यहाँ पर वो ग्रुप मिसिंग है, तो यहाँ पर टेंस प्लेस पर कुछ भी नहीं गिवन है, यानी कि 0 बीड्स है. वी कैन राइट हियर 0 ऑल्सो. ओके, यहाँ पर कुछ मेक नहीं करना. तो वंस कितने गिवन है 8, बिकॉज वी हैव काउंटेड ऑल्सो. यहाँ पर बीड्स मेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट्स ड्रॉ कर दी. टेंस प्लेस पर हमें ड्रॉ नहीं करनी एंड 100 प्लेस पर सिर्फ 1 है. यहाँ पर 100 का ग्रुप दिया है, ओनली सिंगल है, 2 टाइम्स तो नहीं है ना, तो यहाँ पर 1 बीट ड्रॉ करेंगे. ओके, गॉट इट. अब यहाँ पर वंस प्लेस पर हमने 8 ड्रॉ किए तो 8 आ गया, टेंस पर कुछ नहीं ड्रॉ किया तो 0 आ गया, एंड 100 प्लेस पर 1 बीट है तो 1 आ गया. ओके, सो न्यूमरल इज 108. 108 and number name is 108. Okay kids, now next here we have given 1 2 3 4 5 6 7 beads given,
एंड ये जो है ये वंस प्लेस पे आएगा ऑब्वियसली, सो 7 बीट्स ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. हमने 7 बीट्स ड्रॉ कर दिए. क्या यहाँ पर टेंस के लिए कुछ दिया है? नथिंग इज गिवन. क्या यहाँ हंड्रेड्स के लिए कुछ गिवन है? नथिंग इज गिवन. तो हम कुछ ड्रॉ नहीं करेंगे, टेंस प्लेस पर भी, 100 प्लेस पर भी. अब यहाँ फिल करते हैं. तो वंस प्लेस पर 7 आया. टेंस प्लेस के लिए कुछ है? 0. नथिंग मीन्स 0. देन 100 प्लेस पर कुछ है? नथिंग मीन्स 0. So the number is, means numeral is 7 and the number name is 7. Now another one. This is a group of hundreds, okay? So these are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are 9 ones. So यहाँ पर 100 के लिए गिवन है, ones के लिए गिवन है, but tens place के लिए कुछ नहीं गिवन है. Okay? So you have to make beads by yourself and you have to write the numeral and number name in this one by yourself. I've already told you कि यहाँ पर क्या गिवन है, ये hint है. Okay? Further you have to do it by yourself. Okay kids? Then next we have quick tip. Assign each column a place value as on a modern calculator. Each column of beads represent a place value from which you build a numeral. So the furthest column on the right would be the ones place 1 to 9. The second farthest the tens place 10 to 99. The third farthest the hundreds place 100 to 999 and so on. तो हर एक कॉलम जो है ना उसको एक प्लेस वैल्यू असाइन कर रखी है. मॉडर्न कैलकुलेटर में जो बीड्स होती है वो रिप्रेजेंट करती है प्लेस वैल्यू को, राइट? जैसे अभी मैंने बताया था. एंड जो फार्देस्ट कॉलम होता है राइट में, दैट इज वंस, जिसपे प्लेस वैल्यू जो होती है वो नंबर्स कौन कौन से रिप्रेजेंट करता है? 1 to 9 तक. जो सेकंड फर्देस्ट होता है टेंस, वो होता है टेंस प्लेस, जिसमें नंबर्स रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं 10 to 99 तक. देन जो लेफ्ट में होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट में, वो होता है 100 प्लेस. यहाँ पर जो नंबर्स आ सकते हैं वो 100 to 999 तक आ सकते हैं. इसी तरीके से फर्दर आगे बढ़ते जाते हैं. ओके किड्स, राइट द न्यूमरल्स शोन ऑन द अबैकस. हमें न्यूमरल्स राइट करने हैं जो कि अबैकस पर शो किए हैं. ओके, सो फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज गिवन. ओके, सो यहाँ पर जैसे वंस में काउंट किया 1 2 3 4, तो हमने 4 राइट कर दिया. टेंस में काउंट किया 1 2 3 4 5, so 5 राइट कर दिया. We always used to start with the right side, okay, this side, तभी हमारा करेक्ट नंबर रिटर्न होगा. अगर हम लेफ्ट साइड से राइट करना शुरू करेंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा. ओके, देन 100 प्लेस पर 1 बीट गिवन थी, सो 154 आंसर आया. ओके, देन नेक्स्ट वंस प्लेस पर नथिंग इज गिवन, सो 0. देन टेंस प्लेस पर 1 2 3 4 5 beads given, so 5. And 100 place पर nothing is given, so 0. Answer is 50. Okay. Then similarly यहाँ पर ones पर nothing is given, so 0. Then tens place पर भी हमें कोई beat given नहीं है, so 0. And 100 place पर हमें 1 beat given है, so 1 write करेंगे. Okay. Answer is 100. Next. वंस प्लेस पर हमें बीट्स गिवन है, विल काउंट 1 2 3 4 5 राइट करेंगे. टेंस प्लेस पर कुछ भी नहीं दिया, सो 0 राइट करेंगे. देन 100 प्लेस पर यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिया, सो 0. आंसर इज 5. ओके, देन नेक्स्ट वंस प्लेस यहाँ पर है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, सो 6 राइट करेंगे. टेंस प्लेस यहाँ पर है, 1 बीट गिवन है, सो 1 राइट करेंगे. 100 प्लेस में 1 2 3 4 बीट्स गिवन है, सो 4 राइट करेंगे. आंसर इज 460. ओके किड्स, एंड सिमिलरली यहाँ पर वंस प्लेस पर 1 2 3 4 बीट्स गिवन है, राइट करते हैं. टेंस प्लेस पर कुछ भी नहीं दिया है तो 0 राइट करेंगे. एंड 100 प्लेस पर 1 2 3 बीट्स गिवन है, सो 3 राइट करेंगे. आंसर इज 304. ओके किड्स, now similarly you have to do these 3 parts also. यहाँ पर जैसे 100 प्लेस पर गिवन है, टेंस और वंस प्लेस में कुछ भी नहीं गिवन है, so you have to count those beats and you have to write the number. Okay, then यहाँ पर वंस और टेंस प्लेस पर गिवन है but 100 प्लेस पर नहीं गिवन है, so you have to count and write.
एंड देन यहाँ पर 100 टेंस और वंस तीनों प्लेसेस पर गिवन है बीट्स, सो यू हैव टू काउंट एंड राइट द फाइनल नंबर. ओके, then facts to know. Abacus is one of the most primitive calculating devices known. It is still being used in some countries for calculations. जो abacus है ये काफी primitive calculating device है जो कि हमें पता चला है, and आज के टाइम में भी काफी सारी countries में calculation purposes के लिए abacus का use किया जाता है. Okay kids? Then China is majorly considered to be the place of origin of abacus. The originally written documentation on Chinese abacus is dated in the 2nd century BC. So China को माना जाता है कि abacus का origin वहीं से हुआ है, क्योंकि जो documentation है Chinese abacus के वो 2nd century BC के माने जाते हैं. Okay kids? Then next is think wisely. I come after 125 but before 127. Who am I? Represent me on the given abacus below. So यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हमें रिप्रेजेंट करना है उस नंबर को. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि नंबर क्या होगा. सो यहाँ लिखा है I come after 125, 125 के बाद में, बट बिफोर 127, 127 से पहले, यानी कि हमें ऐसे गिवन है 125-127. तो हमें पता है इसे कैसे आंसर करते हैं. 125 then 126, 127. So 126 is the number. Okay, तो यहाँ पर अब क्या करना है, वो जो नंबर आया है यानी कि 126, इसको रिप्रेजेंट करना है. तो 6 जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, वन प्लेस को 6 बीट्स ड्रॉ करना है. 1 2 3 4 5 6. गॉट इट. देन 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंस प्लेस को. सो 2 बीट्स ड्रॉ करते हैं. 1 2. ओके, देन 1 जो है 1 किस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर एक्सट्रीम लेफ्ट में है तो 100 प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो 1 बीट ड्रॉ करते हैं. ओके, तो यहाँ पर नंबर क्या आया था, 126. दिस इज हाउ वी डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ओके किड्स, फर्दर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नाउ मेंटल मैथ. 100 टेंस एंड वंस, राइट हाउ मेनी. सो 100 टेंस और वंस हमें राइट करने हैं एंड हमें काउंट करके लिखना है कौन से में कितने हैं. ओके, सो हियर यू कैन सी यहाँ पर हमें अबैकस गिवन है. काउंट करते हैं बीट्स को. 1 2, वंस प्लेस पर ओनली 2 बीट्स है, सो 2 राइट करेंगे. ओके, देन टेंस प्लेस पर 1 2 3 4, 4 बीट्स है, 4 राइट करते हैं. देन 100 प्लेस पर 1 2 3 4 5 6, 6 गिवन है, सो 6 राइट करते हैं. ओके, यहाँ राइट कर दिया. नाउ द फाइनल आंसर इज 642. दिस इज हाउ वी नीड टू डू दिस क्वेश्चन. ओके, सिमिलरली यू कैन डू दिस पार्ट. जैसे मैंने प्रीवियसली अभी इस पार्ट में किया उसी तरीके से करना है. ओके किड्स, यू हैव टू डू दिस वन बाय योरसेल्फ. नाउ मैथ्स लैब एक्टिविटी. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, मल्टीकलर्ड बीड्स, 4 स्टिक्स एंड अ फेविकोल. सो मल्टीकलर्ड बीड्स चाहिए हमें, 4 स्टिक्स चाहिए एंड फेविकोल चाहिए इस एक्टिविटी को करने के लिए. स्टेप्स. फर्स्ट, डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स. सबसे पहले क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. सेकंड, गिव द मटेरियल्स टू बोथ द ग्रुप्स. अब मटेरियल दे देना है दोनों ग्रुप को. ओके, देन थर्ड, आस्क द ग्रुप टू क्रिएट एन अबैकस एंड शो द नंबर 671 ऑन इट यूजिंग द बीट्स. सबसे पहले अबैकस क्रिएट करना है दोनों ग्रुप में. ओके, एंड उसके ऊपर नंबर शो करना है 671. Then fourth, the group which will create the abacus first will get the points. जो भी सबसे पहले abacus create कर देगा उसको points मिल जाएंगे, वो जीत जाएंगे. Okay? Here you can see how to create the abacus. यहाँ पर ones के लिए एक stick होगी, tens के लिए एक stick होगी, hundreds के लिए एक stick होगी. And यहाँ पर beads आपको खुद put करनी है and then you need to mention the number. यहाँ पर आप draw करोगे. जब आप वैसे बनाओगे एक्टिविटी तो आप स्टिक्स है आपके पास, जो भी मटेरियल है आप प्रॉपरली उसको फिजिकल फॉर्म में बनाओगे, राइट. बट यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है एंड यू हैव टू राइट द answer also. Okay, you can do this activity in your class with your classmates with the help of your teacher. Okay kids, so I hope kids you enjoy learning with me. We'll meet in the next class. Bye bye.